اور اگر آپ اس پروجیکٹ کو میرے ساتھ کوڈ کریں گے تو ہوپفلی اس سیریز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ جاوا اسکرپٹ اور اسپیسیفکلی اس کی فرنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن کے انز اینڈ آؤٹس کو ماسٹر کر چکے ہوں گے۔ اپنی اس لرننگ جرنی کو ہم ایک سمپل اسکرپٹ کے ٹیگ سے سٹارٹ کریں گے اور اس کورس کے اینڈ پر ہمارے پاس ایک فلی فنکشنل سنگل پیج اپلیکیشن ہوگی جس کو ایک ریئل ڈیٹا بیس سے آنے والا ڈیٹا ڈرائیو کرے گا۔ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کمفرٹیبلی اسمال اور میڈیم سائز کی اپلیکیشنز کو بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ جاوا اسکرپٹ کے ایڈوانس فریم ورکس جیسے کہ ریئیکٹ، اینگولر اور ویو کو سیکھنے کے لیے بھی بالکل ریڈی ہو چکے ہوں گے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام سلمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل ڈیو۔ دوستو آج ہم جاوا اسکرپٹ لینگویج سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اس لینگویج کو ڈیٹیل میں سیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس لینگویج کو یوز کر کے اپنے فرنٹ اینڈ پروجیکٹس کو انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں۔ جاوا اسکرپٹ لینگویج پرائمریلی آپ کے فرنٹ اینڈس کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے کریٹ کی گئی تھی، اور آلدو کہ آپ آج اس لینگویج کو اپنے بیک اینڈس کو پروگرام کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اسے سیکھنے کے لیے اس ٹیوٹوریل سیریز میں ہمارا فوکس فرنٹ اینڈ پر ہوگا، اور اس ٹیوٹوریل سیریز کو صحیح طریقے سے فالو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو HTML اور CSS کی بیسکس پتہ ہوں۔ اگر آپ ان لینگویجز کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں جانتے یا ان سے ریلیٹڈ ایک ریفریشر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرا فرنٹ اینڈ فار بگنرز کورس دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا، اور اس کا لنک بھی میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جاوا اسکرپٹ سے ریلیٹڈ کچھ زیادہ پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کورس کو بالکل بیسک سے لے کر چلیں گے۔ ہم اس کورس میں اپنے فرنٹ اینڈ فار بگنرز کورس کی طرح ایک پریکٹیکل پروجیکٹ کریٹ کریں گے، اور اگر آپ اس پروجیکٹ کو میرے ساتھ کوڈ کریں گے تو ہوپفلی اس سیریز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ جاوا اسکرپٹ اور اسپیسیفکلی اس کی فرنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن کے انز اینڈ آؤٹس کو ماسٹر کر چکے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیا پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں۔ تو دوستو جو اپلیکیشن ہم اپنے اس کورس میں کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام پراپرٹیز ہے، اور یہ ایک امیجنری کمپنی کی اپلیکیشن ہے جس کا کام ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز کی ایک لسٹنگ کو مینٹین کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں تو یہاں پر آپ کو اس سیکشن میں ڈیفرنٹ ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز کی ایک لسٹنگ نظر آئے گی۔ اب اگر ہم واپس اوپر سکرول کریں تو یہاں پر آپ کو ایک فلٹرز کا فارم نظر آئے گا جن کے ذریعے آپ اس لسٹنگ کو فلٹر کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم اپنی ان پراپرٹیز کو ان کے بیڈ رومز کی بیسس پر فلٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے فار ایگزامپل 5 بیڈ روم سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور اب اگر ہم اپنے ریزلٹس کو دیکھیں تو ہمیں یہاں پر صرف وہی پراپرٹیز لسٹڈ نظر آئیں گی جن کے بیڈ رومز کا نمبر 5 ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی اس لسٹ کو ان ڈیفرنٹ ویلیوز کی بیسس پر فلٹر کر سکتے ہیں اور ان کے ریزلٹس آپ کو ریئل ٹائم میں نظر آئیں گے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں اپنی پراپرٹی کی ٹائپس کو لگژری ولا کی بیسس پر فلٹر کرنا چاہوں تو اس کو کلک کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لسٹ یہاں پر فلٹر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم سکرول کر کے اپنے پیج کے باٹم پر آئیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ پراپرٹی لسٹنگ پیجینیٹڈ ہے، اور آپ اس نیویگیشن کی مدد سے اپنے ان ریزلٹس کے پیجز پر ایزیلی نیویگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں سے پیج 2 کو کلک کریں تو ہمارے ان پراپرٹی آئٹمز کا پیج 2 یہاں پر لسٹ ہو جائے گا۔ اس لسٹنگ پیج کے علاوہ ہمارا یوزر ان میں سے کسی بھی پراپرٹی آئٹم کو کلک کر کے اسپیسیفک پراپرٹی کی ڈیٹیلز کو دیکھ پائے گا۔ اپنی اس اپلیکیشن میں ہم ایک بیسک آتھینٹیکیشن سسٹم بھی امپلیمنٹ کریں گے جس کے بعد ایک رجسٹرڈ یوزر ہماری اپلیکیشن میں سائن ان کر پائے گا، اور سائن ان کرنے کے بعد ہمارا یوزر یہاں سے ایک نئی پراپرٹی کو ایڈ کر سکے گا، ایک ایگزسٹنگ پراپرٹی کو ایڈٹ کر سکے گا، اور فائنلی ایک پراپرٹی کو ڈیلیٹ کر سکے گا۔ اس کے علاوہ ہم اس آتھینٹیکیشن کے فیچر کو کچھ اس طریقے سے یوز کریں گے کہ اگر ہماری اپلیکیشن میں ایک یوزر لاگڈ ان نہیں ہے تو ہم اس سینیریو میں ان پراپرٹی آئٹمز کے کریٹ، اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کے آپریشنز کو پریونٹ کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر لاگڈ ان نہیں ہیں تو ہمیں یہاں پر ایڈ نیو، ایڈٹ اور ڈیلیٹ کے یہ بٹنز نظر نہیں آ رہے۔ یہ اپلیکیشن میں نے خاص طور پر اس کورس کے لیے کریٹ کی ہے، اور ایک کوشش کی ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم جاوا اسکرپٹ کے زیادہ سے زیادہ فیچرز کو ایک پریکٹیکل وے میں کور کر سکیں۔
इस प्रोसेस में हम जावास्क्रिप्ट के नेटिव फीचर्स को डिटेल में देखने के अलावा डिफरेंट पॉपुलर लाइब्रेरीज का यूज़ भी देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का यूज़ करके बड़ी आसानी से कॉम्प्लेक्स फीचर्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन लाइब्रेरीज को यूज़ करके हम मॉडल्स और टोस्ट मैसेजेस जैसी फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक स्टेप आगे चलकर ये इंश्योर करने के लिए कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ मेमोरी में ही सेव ना करें बल्कि इन्हें किसी प्रॉपर डेटाबेस में स्टोर करें, हम गूगल की फायरबेस सर्विसेज का यूज़ करेंगे। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को एक प्रॉपर सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी ये वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव हो जाएगी और आप इस एप्लीकेशन का लिंक किसी के साथ भी शेयर कर पाएंगे और ये एप्लीकेशन आपके प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो में एक वैल्यूएबल एडिशन होगी। क्योंकि हमारा फोकस इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट पर होगा और हम HTML और CSS पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको एक बेस HTML और CSS बेस प्रोजेक्ट और उसकी फाइल्स खुद से प्रोवाइड करूंगा ताकि हम सीधा जावास्क्रिप्ट पर जंप कर पाएं। अपनी इस लर्निंग की जर्नी को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि डेटा और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स और फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, कंडीशनल्स और लूप्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, अरेज और ऑब्जेक्ट्स को अपने डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इवेंट्स और प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं, डॉम क्या है और इसे किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इन बेसिक लैंग्वेज फीचर्स के अलावा मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इन्हें यूज़ करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और कैसे हम जावास्क्रिप्ट के नए फीचर्स जिन्हें कि ES6 के फीचर्स कहा जाता है और कुछ थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को स्केलेबल बना सकते हैं। अपनी इस लर्निंग जर्नी को हम एक सिंपल स्क्रिप्ट के टैग से स्टार्ट करेंगे और इस कोर्स के एंड पर हमारे पास एक फुली फंक्शनल सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी जिसको एक रियल डेटाबेस से आने वाला डेटा ड्राइव करेगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आप कंफर्टेबली स्मॉल और मीडियम साइज की एप्लीकेशंस को बनाने के काबिल हो जाएंगे और इसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट के एडवांस फ्रेमवर्क्स जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर और व्यू को सीखने के लिए भी बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आप ये सब्जेक्ट सीखने के लिए उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना एक्साइटेड मैं ये सब्जेक्ट सिखाने के लिए हूँ। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इस लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करना चाहूँगा। उनमें से सबसे पहली बात ये कि जावास्क्रिप्ट एक बड़ा सब्जेक्ट है और ख़ास तौर पर अगर आपका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आपकी सक्सेस के लिए सबसे की फैक्टर आपकी पेशेंस होगा। ये एक लंबी ट्यूटोरियल सीरीज होने जा रही है और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप पेशेंटली इसे मेरे साथ फॉलो करें और मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। खास तौर पर अगर जावास्क्रिप्ट आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहली बार में समझ नहीं आएंगे। तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करना होगी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस प्रोसेस से मुझ समेत सारे डेवलपर्स होकर गुजरते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ ना आए तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। तो अब हम इस डिस्कशन पर मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और अपने लर्निंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग की तरफ चलने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन इस कोर्स के फाइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर होगा जिसमें हम अपने इस कोर्स की सारी फाइल्स को स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम फ़िलहाल मैं प्रैक्टिकल डेव -JSFB, जिसका मतलब जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स है, ये रख देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर हम एक कन्वेंशन को फॉलो करेंगे जो कि फ्यूचर में हमें अपने कोर्स के डिफरेंट चैप्टर्स और उससे रिलेटेड फाइल्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगी। और वो कन्वेंशन ये है कि हम अपने हर चैप्टर से रिलेटेड एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे कि अभी हम कोर्स को बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर होगा और इस फोल्डर का नाम हम 01 रखते हैं जो कि हमारे पहले चैप्टर का नंबर है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास हमेशा दो फोल्डर्स होंगे। पहला फोल्डर अपेंडिक्स का फोल्डर होगा और दूसरा फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा। क्योंकि हम इस कोर्स में एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी फाइल्स हम इस फोल्डर में रखेंगे जिसका नाम प्रोजेक्ट है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें हम इस प्रोजेक्ट से हटकर इंडिपेंडेंटली डिस्कस करेंगे उनको हम अपने अपेंडिक्स के फोल्डर में रखेंगे। इसी तरह जब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, यानी कि जब हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो हम वापस जाकर अपने इस पहले फोल्डर की कॉपी बनाएंगे और इसका नाम हम 02 रखेंगे। इसी तरह जब हम अपने थर्ड चैप्टर पे जाएंगे तो इस सेकंड चैप्टर के फोल्डर की कॉपी बना लेंगे
और इसे 03 नेम कर देंगे। इस कन्वेंशन को फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब आप इस कोर्स की फाइल्स को देखेंगे तो आप बहुत ईजीली ये रिलेट कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर को कौन सा फोल्डर बिलोंग करता है। अगली चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि इस कोर्स की सोर्स फाइल्स आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इस कोर्स की सारी फाइल्स को मैं गिटहब पे होस्ट करूँगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक को फ़िलहाल मैं अपने ब्राउज़र में खोल लेता हूँ ताकि हम देख सकें कि हम इन प्रोजेक्ट फाइल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सामने इस वक्त हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी है जिसके अंदर इस कोर्स से रिलेटेड सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। आप लोगों में से कुछ लोग शायद गिट को ऑलरेडी यूज़ करना जानते होंगे, तो उन लोगों के लिए फर्दर कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग गिट को नहीं जानते उनके लिए ये एक अच्छा टाइम है कि आप इसे सीखना शुरू करें। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसका सबसे पहला मकसद तो आपके प्रोजेक्ट को एक बैकअप प्रोवाइड करना होता है, यानी कि आपका प्रोजेक्ट सिर्फ आपकी हार्ड ड्राइव पर मौजूद ना हो बल्कि एक सिक्योर सर्वर पर भी आप उसकी फाइल्स को सेव कर सकें, ताकि अगर किसी भी वजह से आपकी फाइल्स डिलीट हो जाएं या मिसाल के तौर पर अगर आपकी हार्ड ड्राइव ही ख़राब हो जाए तो आपके पास उसका एक सिक्योर बैकअप ऑनलाइन मौजूद हो। इसका दूसरा मेन पर्पस आपके प्रोजेक्ट की चेंजेस को ट्रैक करना होता है, जो कि ख़ास तौर पर तब काम आती है जब आप एक टीम में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिस पे 3 लोग काम कर रहे हैं, हम इसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 फाइल्स हैं, एक ये readme.md फाइल है, फिर एक लाइसेंस फाइल है और ये एक gitignore फाइल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप तीनों लोगों ने ये टास्क डिवाइड कर लिए हैं और सपोज कि आप अपना काम इस gitignore फाइल पे कर रहे हैं, आपका दूसरा टीम मेंबर इस लाइसेंस की फाइल पे काम कर रहा है और आपका तीसरा मेंबर इस readme.md फाइल पे काम कर रहा है। तीनों लोग जब अपने अपने टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को एक दफ़ा मिलकर बैठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप तीनों इस एक ही प्रोजेक्ट में अपनी अलग अलग फाइल्स को सही तरीके से मर्ज कर सकें। जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ेगा या आपकी टीम का साइज़ बढ़ेगा तो ये प्रोसेस डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जहां आकर ये काम तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियो में एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारे काम आता है, जहां पर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसे गिट की टर्म्स में रिपॉजिटरी कहा जाता है। उस प्रोजेक्ट पे आप जितने भी चाहें लोग अपना अपना काम करते जाएंगे और गिट एक एफिशिएंट मैनर में इस काम को मर्ज करता जाएगा। इसका दूसरा मेन फ़ायदा ये है कि गिट आपके सारे चेंजेस का एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है और आपको फ्यूचर में जाकर किसी भी पॉइंट पर यह लगे कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप बड़ी इजीली उसे ट्रैक भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो किसी प्रीवियस वर्जन पे बड़ा इजीली रिवर्ट कर सकते हैं। गिट अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है और इसे हम बहुत डिटेल में इस प्रोजेक्ट में कवर नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप इसे साइड बाय साइड सीखना स्टार्ट कर दें और इसे किक ऑफ करने के लिए हम इसी प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो गिट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपनी गूगल सर्च में जाएं और यहाँ पर गिट सर्च करें। यहाँ पर आपको अपने सर्च रिजल्ट्स में जो पहला लिंक नज़र आ रहा है git-scm.com, इसे आप खोल लें। यहाँ पर आपको ये डाउनलोड्स का लिंक नज़र आएगा। यहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक जो वर्जन आपको सूट करता है वो आप डाउनलोड करेंगे और इसे एक आम एप्लीकेशन की तरह इंस्टॉल करेंगे। जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम वापस चलते हैं अपने गिटहब के लिंक की तरफ और यहाँ पर हम अपने इस ग्रीन बटन पे आएंगे जिसके ऊपर आपको कोड लिखा नज़र आएगा। इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। फिलहाल हम यहाँ से इस HTTPS की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस लिंक को जो कि आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद हमें जहाँ पर इन सोर्स फाइल्स को डाउनलोड करना है उस फोल्डर में चलेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अपने इस प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में यहाँ पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर हमें अपना टर्मिनल ओपन करना होगा। ये जिस टर्मिनल की हम बात कर रहे हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वेरी करता है। इस वक्त मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मौजूद हूँ और विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 2 किस्म के टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का टर्मिनल होता है, जिसको अगर आप इस फोल्डर में खोलना चाहें तो आप यहाँ से ऊपर ये जहाँ पर आपका फोल्डर का पाथ है इसे एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यहाँ पर CMD लिखकर एंटर करेंगे और ये फोल्डर आपके टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। दूसरे टाइप का टर्मिनल जो कि विंडोज 7 ऑनवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होता है वो पावर शेल का टर्मिनल है और उसे ओपन करने के लिए अगेन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पावर शेल के वर्ड्स लिखेंगे और ये हमारे लिए हमारे इस फोल्डर को पावर शेल में ओपन कर देगा। तो अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप इन दोनों टर्मिनल्स में से कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप गिट को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक गिट बैश नाम का थर्ड टर्मिनल भी अवेलेबल हो जाएगा। जो कमांड्स हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो हर किस्म के टर्मिनल पर बिल्कुल एक जैसे चलेंगी, इसलिए आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं आप उसका टर्मिनल देख लीजिए और आप ये कमांड्स उस टर्मिनल में रन कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या गिट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे git-v और यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आउटपुट नज़र आनी चाहिए जिसमें गिट का वर्जन, ये वर्जन आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए जिससे ये डिटेक्ट हो सके कि गिट आपके पास सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ये वेरीफाई करने के बाद हम अपनी रिपोजिटरी को क्लोन करने की कमांड लिखेंगे जो कि है git clone, और यहाँ पर हमने जो लिंक अपने गिटहब से कॉपी किया था जो कि बेसिकली ये लिंक है, हम इसे एक दफ़ा फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ git clone के बाद हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे और उसके लिए हम सिंपली राइट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम एंटर या रिटर्न की प्रेस करेंगे और ये हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर लेगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट को गिट से हमारे लोकल फोल्डर में कॉपी कर लेगा। अब अगर हम चलकर अपने इस डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को देखें तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर ये फोल्डर गिट से यहाँ पर क्लोन हो चुका है। इस अप्रोच को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट में जो कि हमने गिटहब पर होस्ट किया है, अगर मैं वहाँ पर कोई चेंजेस करता हूँ और नेक्स्ट टाइम जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इस बार हम इस फोल्डर के अंदर से पावर शेल या अपने किसी टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। इस बार मैं कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लेता हूँ, तो हम यहाँ पर cmd लिखकर एंटर करेंगे और यहाँ पर जब भी मुझे लेटेस्ट डेटा गिटहब से पुल करना हो तो मैं यहाँ पर git pull की कमांड लिखकर एंटर करूँगा और ये हमारे इस लोकल फोल्डर को हमारे रिपोजिटरी के मुताबिक जो कि हमने गिटहब पे होस्ट कर रखी है अपडेट कर देगा। इस वक्त क्योंकि यहाँ पर कोई नए चेंजेस नहीं हैं इसलिए हमें ऑलरेडी अप टू डेट का मैसेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। गिट की इन कमांड्स को यूज़ करने के लिए या फॉर दैट मैटर टर्मिनल से रिलेटेड कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए एक थर्ड तरीका हम देख लेते हैं और वो तरीका VS कोड से रिलेटेड है जो कि हमारा इस प्रोजेक्ट में एडिटर होगा। तो इस फोल्डर को हम VS कोड में खोल लेते हैं। तो VS कोड में अगर आप टॉप पर अपने मेन्यू में जाएं तो यहाँ पर आपको एक टर्मिनल की ऑप्शन नज़र आएगी। ये ऑप्शन फिलहाल स्पेस की वजह से हमारे पास हिडन है, तो हम यहाँ पर इस 3 डॉट्स वाले आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये टर्मिनल नाम की ऑप्शन नज़र आएगी। इसमें से हम इस न्यू टर्मिनल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे या अल्टरनेटिवली आपके पास यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट भी मौजूद है, तो हम इस न्यू टर्मिनल को क्लिक करेंगे और VS कोड हमारे लिए यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ये टर्मिनल ओपन कर देगा और आप इसका पाथ यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसी फोल्डर को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम अपने टर्मिनल से रिलेटेड या गिट से रिलेटेड कोई भी कमांड रन कर सकते हैं जैसे कि git pull। VS कोड के इस इंटीग्रेटेड टर्मिनल को दिखाने का एक मकसद ये भी था कि अगर आप विंडोज़ के अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं और ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप टर्मिनल को कैसे एक्सेस करेंगे, तो आप इस इंटीग्रेटेड टर्मिनल की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड टर्मिनल बेसिकली VS कोड का कोई अपना टर्मिनल नहीं है, बल्कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही डिफरेंट टर्मिनल्स को यूज़ करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ऊपर देखें तो हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल हमारा ये टर्मिनल विंडोज़ के पावर शेल को यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ से इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके अपने टर्मिनल की टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करना चाहूँ तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करके इस इंटीग्रेटेड टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकता हूँ। गिट को जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पैरेलल में सीखनी चाहिए। फ़िलहाल इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि आप इस कोर्स की प्रोजेक्ट फाइल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सारा प्रोसेस अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसकी एक सिंपल अप्रोच भी हमारे पास अवेलेबल होती है। हम वापस अपने गिटहब के लिंक की तरफ चलेंगे और यहाँ पर अगेन इस कोड वाले ग्रीन बटन को हम क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ डाउनलोड जिप की एक ऑप्शन मौजूद होती है। आप इसे क्लिक करके भी इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद हमें ये जिप फाइल मिलेगी जिसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये फाइल्स आपको इस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में मिल जाएंगी। इस अप्रोच के साथ एक छोटा सा इशू ये होगा कि क्योंकि इस कोर्स के हर चैप्टर के साथ मैं इस प्रोजेक्ट की फाइल्स को अपडेट करूँगा तो शायद आपको ये बार बार डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना पड़े। इसके अगेंस्ट अगर आप उस गिट वाली अप्रोच को यूज़ करें जिसे अभी हमने डिस्कस किया है तो आप बड़ी आसानी से जब भी आपको कोई चेंज नज़र आए तो आप गिट पुल की कमांड अपने टर्मिनल में रन कर सकते हैं और आपकी प्रोजेक्ट की फाइल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो दोस्तों अब जबकि हमने ये देख लिया कि हम अपने इस कोर्स की फाइल्स को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे और कैसे आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, तो अब हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इन 02 और 03 फोल्डर्स को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाए थे
और क्योंकि अभी हम इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि पहले कुछ डिस्कशन इस अपेंडिक्स के सेक्शन में करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड नाम की एक फाइल बनाऊंगा जो कि एक HTML फाइल होगी। यहाँ पर हम एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम हेलो वर्ल्ड रख लेते हैं और यहाँ बॉडी में सिंपली एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। हम इस पेज को विजुअल स्टूडियो कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे, और अगर आपके पास लाइव सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड से इस एक्सटेंशंस के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर लाइव सर्वर को सर्च करेंगे। यहाँ से आप इस लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि ये लाइव सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसे क्लोज करूँगा और हम वापस चलेंगे अपनी फाइल्स की तरफ, जिसके लिए हम अगेन लेफ्ट साइड से इस एक्सप्लोरर वाले सेक्शन में चलेंगे और इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पेज हमारे सामने ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और हमारे पास यहाँ पर एक बटन मौजूद है। अभी तक ये एक सिंपल HTML का पेज है और इसमें हमने जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल नहीं किया। तो हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को इस पेज में कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अपनी HTML में हम इस बटन के बाद एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे और इसे क्लोज करेंगे। इस स्क्रिप्ट के टैग के दरमियान हम अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट जो हम यहाँ पर देखेंगे वो एक कंसोल लॉग की स्टेटमेंट है और उसको लिखने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर दो पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करेंगे। इन दो पैरेंथेसिस के दरमियान में हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, जिसके लिए हम दो कोटेशंस ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। हम इस पेज को सेव करेंगे और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। इस वक्त अगर आप अपने पेज को देखें तो आपको कहीं पर भी हेलो वर्ल्ड लिखा नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट एक तरीके से हमारे पेज के बैकग्राउंड में काम करती है और इसके रिजल्ट्स हमें अपने मेन पेज पर तब तक नज़र नहीं आते जब तक हम इसे किसी तरीके से इंस्ट्रक्ट ना करें। अभी हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है जो कि console.log हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे ब्राउज़र के कंसोल में प्रिंट होगी। तो दोस्तों, आपके ब्राउज़र का एक कंसोल होता है जिसे ओपन करने के लिए हम वापस अपने ब्राउज़र की तरफ चलेंगे। ये लॉग ओपन करने का तरीका आपके ब्राउज़र के मुताबिक डिफरेंट हो सकता है। इस वक्त मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने डेवलपर टूल्स को ओपन करूँगा और यहाँ पर आपको कंसोल की ये ऑप्शन राइट साइड पर नज़र आएगी। हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड का ये टेक्स्ट प्रिंटेड नज़र आ रहा है। इस console.log स्टेटमेंट का मेन मकसद डिबगिंग होता है या आपके कोड के डिफरेंट सेक्शंस के रिजल्ट को टेस्ट करना होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट के रिजल्ट्स आपके मेन पेज पर तब तक नज़र नहीं आएंगे जब तक हम एक्सप्लिसिटली इन्हें दिखाना ना चाहें। तो ऐसे सिनेरियो में आप अपने कोड के बिहेवियर को और डिफरेंट रिजल्ट्स को वैलिडेट करने के लिए console.log स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन इस चीज़ पर कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का काम आखिर हमारे पेज में है क्या। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर HTML का एक पेज है, इसमें एक बटन का एलिमेंट मौजूद है। इस HTML बटन एलिमेंट को अगर हम चाहें तो हम CSS के ज़रिए स्टाइल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर स्टाइल का एक टैग बना लेते हैं और इस बटन को कुछ स्टाइल कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस बटन को कुछ बेसिक स्टाइल्स दिए हैं। अगर हम इसे ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे बटन के स्टाइल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें क्लियर हैं वो ये कि इस बटन को HTML के ज़रिए हमने क्रिएट किया है और CSS के ज़रिए हमने इसे स्टाइल किया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मिसिंग लिंक जो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये कि बटन एक इंटरेक्टिव एलिमेंट है या एक क्लिकेबल एलिमेंट है, और जब आप अपने इस पेज में इस बटन को प्लेस करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा और उसके क्लिक करने पर हम कोई फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये फंक्शनैलिटी हम CSS और HTML के ज़रिए परफॉर्म नहीं कर सकते। इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी जावास्क्रिप्ट एक्शन में आती है। तो यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखूँगा जिसे अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हम डिटेल में आगे चलकर कवर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इस बटन के क्लिक्स को लिसन कर सकते हैं और फिर उसके क्लिक होने पर कोई फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल इस बटन को एक ID दूंगा और यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट में आकर कुछ कोड लिखूंगा।
यहाँ पर हम अपनी इस console.log स्टेटमेंट को एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर बटन क्लिक्ड के टेक्स्ट को लॉग करते हैं। अब हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में चलते हैं और अब आप देखेंगे कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो राइट साइड पर हमारे लॉग में बटन क्लिक्ड लॉग हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसे बार बार क्लिक करता जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि बता रहा है कि इतनी बार हमारा ये बटन क्लिक हुआ है। तो इस तरीके से हमने अपने इस सिंपल पेज को जावास्क्रिप्ट की मदद से इंटरेक्टिव बना लिया है और अब जब भी इस बटन पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पाएंगे। इस वक्त इसके क्लिक होने पर जो फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सिंपल एक लॉग स्टेटमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली आप जावास्क्रिप्ट के जरिए आपके ब्राउज़र के डोमेन में रहते हुए जो फंक्शनैलिटी भी पॉसिबल है उसे इस बटन के क्लिक होने पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं इस console.log की स्टेटमेंट को अलर्ट की एक स्टेटमेंट से रिप्लेस कर देता हूँ और उसमें हमारा यही टेक्स्ट पास होगा। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा हमारे ब्राउज़र की तरफ से हमारे इस पेज पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें बटन क्लिक का ये टेक्स्ट मौजूद है और इसे हम क्लोज कर सकते हैं। इस चैप्टर को रैप अप करने से पहले कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ इस स्क्रिप्ट की प्लेसमेंट है कि आपने देखा होगा कि हमने इसे अपने बटन के बाद प्लेस किया है। इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर प्लेस करने का एक्चुअल मकसद ये था कि हम इसे अपने बॉडी टैग के बिल्कुल एंड पर प्लेस करें, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ और एलिमेंट होते, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ होता तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि हम इस स्क्रिप्ट को इन सारे एलिमेंट्स के जो कि बॉडी के अंदर आएंगे इनके बाद में प्लेस करें, यानी कि बॉडी के बिल्कुल एंड पर। अब इस स्क्रिप्ट के टैग को हम बॉडी के एंड पर क्यों प्लेस कर रहे हैं, इसकी एक लॉजिकल वजह हम अभी देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ब्राउज़र है वो हमारी इस HTML फाइल को और इसमें आने वाली सारी फाइल्स को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। तो मिसाल के तौर पर जब हमारा ये पेज लोड होगा तो हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन 1 से शुरू करेगा और फिर एक एक करके इन एलिमेंट्स को रीड करना शुरू करेगा और उसके मुताबिक ही इन्हें इंटरप्रेट करेगा। इस इंटरप्रिटेशन के सीक्वेंस को अगर हम कंटिन्यू करें तो हम यहाँ पर अपने बटन के टैग में आएंगे, उसके बाद हमारा ये पैराग्राफ रेंडर होगा और फिर फाइनली हमारा स्क्रिप्ट का टैग आएगा। इस स्क्रिप्ट के टैग में अगर आप नोट करें तो हम यहाँ पर पहले एक बटन को एक्सेस कर रहे हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर हमने ये बटन क्रिएट कर रखा है। उसके बाद जब हम अपने स्क्रिप्ट में इस बटन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो जब हमारा इंटरप्रेटर ऊपर से नीचे की तरफ इसे रीड करेगा तो ये बटन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होगा। इसका मतलब कि ये सक्सेसफुली इस बटन को डिटेक्ट करके हमारे लिए फेच कर पाएगा और उसके बाद हमारी ये जो फंक्शनैलिटी है ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगी। इसके अगेंस्ट अगर हमारा ये स्क्रिप्ट का टैग, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे यहाँ से कट करके यहाँ हेड के टैग के अंदर पेस्ट कर दूं और अब अगर हम इस पेज को सेव करके अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंसोल में हमारे पास एक एरर आ गया है। अगर हम इसे रीड करें तो ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग एड इवेंट लिसनर। अगर हम वापस अपने कोड की तरफ चलें तो हुआ कुछ यूँ कि हमारे इस स्क्रिप्ट ने इस बटन को फेच करने की कोशिश की जो ऊपर अभी तक मौजूद ही नहीं है। अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोई बटन नहीं है। हमारा ये बटन इंटरप्रेटर के रूल्स के मुताबिक स्क्रिप्ट के टैग के ख़त्म होने के बाद जब बॉडी का टैग शुरू होता है तो उसके अंदर हमारा ये बटन आता है, तो इस जगह पर ये हमें एरर दे देगा। इस इशू को फिक्स करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कुछ मेथड्स मौजूद हैं जो कि हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जबकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप हमेशा स्क्रिप्ट के टैग को अपनी बॉडी के बिल्कुल एंड पर रखें। एक दूसरी वजह स्क्रिप्ट के टैग को बॉडी टैग के एंड पर रखने की ये है कि आपके स्क्रिप्ट के टैग्स यूजुअली ब्लॉकिंग टैग्स होते हैं, यानी कि अगर हम इस सारी फंक्शनैलिटी को हेड के टैग में रख लें और इवन दो कि इसमें कोई एरर भी ना हो तो भी हमारा इंटरप्रेटर जब स्क्रिप्ट के टैग पर पहुंचेगा तो पहले इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा और जब ये सब काम खत्म हो जाएंगे तब हमारी बॉडी के टैग तक पहुंचेगा और इसकी वजह से हमारे ये UI एलिमेंट्स तब तक ब्लॉक रहेंगे जब तक ये स्क्रिप्ट का टैग एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। इसीलिए इन स्क्रिप्ट के टैग्स को बॉडी के टैग के एंड पर रखना एक बेहतर प्रैक्टिस कंसिडर होती है। लास्ट चीज़ जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे वो ये कि CSS की तरह आप अपने स्क्रिप्ट्स को भी एक्सटर्नल फाइल्स के ज़रिए लिंक कर सकते हैं और उसका तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर ये स्क्रिप्ट हमें एक्सटर्नल फाइल में मूव करना हो तो हम यहाँ पर अपेंडिक्स के फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम हेलो वर्ल्ड
.js रखेंगे और ये js इस फाइल की एक्सटेंशन होगी जो कि ये बताएगी कि ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो हम यहाँ से ये सारा कोड जो कि हमारे स्क्रिप्ट के टैग्स के दरमियान में है इसे कट करेंगे और अपनी हेलो वर्ल्ड की फाइल में पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट के टैग में एक सोर्स का एट्रीब्यूट देंगे और इसमें उस फाइल का लिंक होगा। अब अगर हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में चलें तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट उसी तरह एग्जीक्यूट हो गया है। तो दोस्तों ये हमारे जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स का एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक करके जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करना शुरू करेंगे और अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए एक सॉलिड बेस डेवलप करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।